Hello friends, good evening once again. Today we'll talk about the psychological test which is known as MANSA, and we understand that you are presented with 4 tests: TAT, WAT, SRT and SD, and essentially the psychologist wants to know how do you think to understand your static pattern of personality. All these things we have spoken in the previous couple of videos. Now in the previous video, one of the previous video, I have shown you this picture where a candidate had made a story about on this picture where he created a story of a husband and wife, and I'll not elaborate it here because it was already covered there. Just quickly read the story. It says Suma is a 24-year-old girl and her husband told her to have physical relation with his boss because he wants promotion. Then after some time, when she goes to her husband's boss, his boss totally refused to have sexual relation with her, and he told her that I want to see your husband's behavior because I have a doubt that he is not a good person. Also, he can do anything for the promotion, so I suggest you to please leave your husband. This was a story that was made by a candidate. I'll not elaborate it here because it's already covered. We were looking for these qualities, and absolutely it has come contrary to that. There is a breach of trust because विश्वासघात है यहाँ पे. पति पत्नी की रिलेशनशिप के अंदर lack of trust दिखाया गया हुआ है. इसको समझने के लिए I suggest you to watch a video. A4 का है. That video का नाम है Values for Leadership Excellence. What was required is family values, husband wife relationship के ऊपर, love, care, respect, acceptance and all that. But what was shown is promotion के लिए this husband took a decision. He took a decision, serial number 10, to send his wife to his boss so that his boss ka lust could be fulfilled, and in return he gets promotion. So in the process, अपनी पति पत्नी का रिलेशनशिप में his adaptability, cooperation, sense of responsibility सब कुछ ही गलत आया, and his तर्क शक्ति कि अपने प्रमोशन के लिए इस तरह का एक तरीका लेना रीजनिंग को भी दिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी गड़बड़ दिखाता है, एंड अपने लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहा, यूजिंग हिज ओन वाइफ एज एन ऑब्जेक्ट फॉर, सो it's not unacceptable kind of a story. I'll not dwell on it because we have already spoken about it quite at length. The point is मानसा. तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट ने इसे लिखा है, डेफिनेटली उसकी मानसा में देयर इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम. सो साइकोलॉजिस्ट को टीएटी का रेस्पॉन्स को पढ़ के वो देखना चाहता है कि इस रेस्पॉन्स को लिखने वाले कैंडिडेट के मानसा में क्या हुआ होगा. साइकोलॉजिस्ट गिव दिस एंड दिस वेंट थ्रू द आइज एंड इट गॉट प्रोसेस्ड हियर, एंड प्रोसेस करके दिस response, TAT का response is the processed output. So the quality of the processed output is determined by the quality of the candidate's mansa. All those things we have already spoken. To understand mansa, you have to understand कि मन को एक घोड़े के साथ तुलना किया जाता है. हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं मन एक घोड़ा रूपी होता है. अगर मन एक घोड़ा है तो घोड़े को कंट्रोल करना चाहिए. तो अगर आपका भी मानसा में नियंत्रण होगा तो ये क्वालिटीज़ दिखेगा, लेकिन अगर आपकी मानसा अनकंट्रोल्ड है देन इट कैनॉट बी. सो मन को टेम करना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन योर मानसा विल बिकम बेटर. और अगर आप समझोगे, अगर आप SML का एक वीडियो है, उस वीडियो का नाम है SML माइंड मैटर्स, आपको वहाँ पे एक परिस्थिति वर्सेस मनस्थिति करके एक वीडियो दिखाया था. तो एक्चुअली हमें 5 एक्सटर्नल घोड़ों को मैनेज करना है, और वो 5 एक्सटर्नल घोड़े क्या कौन कौन से हमारे eyes, ears, nose, tongue and skin. These are the 5 external ghoda, and this external ghoda has to be controlled by one more internal ghoda, and that internal ghoda is called mind. Mind मतलब मन, mind. एंड क्योंकि मन खुद भी एक घोड़ा है, मन खुद ही घोड़ा है, अगर मन को कंट्रोल करना है इंटेलेक्ट ने, सो मन को कंट्रोल करना है इंटेलेक्ट. सो द हायरार्की इज सबसे ऊपर इंटेलेक्ट, उसके नीचे माइंड. दीज आर द इंटरनल फैकल्टीज, एंड देन द माइंड कंट्रोल्स द 5 एक्सटर्नल सेंस परसेप्शन. दैट्स योर आई, ईयर्स, नोज एंड दैट. Now when the TAT picture is presented to you, it goes inside
योर इनर वर्ल्ड थ्रू योर आइज, आपकी आंखों के माध्यम से वो अंदर जाता है और आपके माइंड और इंटेलेक्ट मिलकर उसको प्रोसेस करते हैं. सो द क्वालिटी ऑफ योर मानसा डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर प्रोसेसिंग, इंटरनल प्रोसेसिंग. इसके लिए एक और AFOSUP का वीडियो है, उसका नाम है प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस. प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस. आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट एंड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपका मन बेलगाम घोड़े की तरह इस प्रकार भागता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, यू कैन नॉट सिट ऑन दिस, ये आपको पलट के मार देगा. इनफैक्ट घोड़े को सेंस कर लेता घोड़ा कि सवार कंट्रोल कर सकता है या नहीं. अगर उसको लगता है सवार वीक है, उसको पलट के मार देता है. हम लोगों ने एकेडमी में जब IIM में हॉर्स राइडिंग करते थे तो घोड़ा यूज टू सेंस कि राइडर कितना केपेबल है. और अगर आपका मन इस तरह से अशांत घोड़े की तरह काम करेगा, डेफिनेटली इट कैनॉट थिंक प्रॉपरली. सो जब आपका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी इन विकारों से चलता है तो ये घोड़ा अनकंट्रोल तरीके से बिहेव करता है. एंड सेकेंड इज, अगर घोड़ा बहुत कंट्रोल में है तो उसको, अगर घुड़सवार के कंट्रोल में है, देन इसकी गति और दिशा को आप डिसाइड कर सकते हो. तो जीवन में मैं एक बात बोलता हूँ, जीवन में गति से ज़्यादा दिशा की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है. क्या बोला? गति से ज़्यादा दिशा इज इम्पॉर्टेंट. और अगर दिशा सही हो तो गति आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर दिशा सही ना हो, गति तेज हो, वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है. तो मुझे बताना मैंने क्या बोला, जीवन में गति से ज़्यादा दिशा इम्पॉर्टेंट है. और दिशा देने का मतलब है मन रूपी घोड़े के ऊपर नियंत्रण. तो अगर आपका मन सेकंड जो नीचे चल रहा है उसकी तरह होगा तो इट इज़ अंडर कंट्रोल. अब ये बचपन से कंट्रोल होना चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे पेरेंटिंग में होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली आवर पेरेंटिंग लैक्स इट, आवर एजुकेशन सिस्टम लैक्स इट, एंड SSB सिंस इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, तो ये काम हम कोचिंग वालों ने ले रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का. सो वन ऑफ द थिंग इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज टू हैव एन एब्सोल्यूट इनर कंट्रोल. सो अनफॉर्चुनेटली रोट मेमोरी बेस SSB ट्रेनिंग में ये कम्प्लीटली मैनिपुलेट किया जाता है. मतलब आपके घोड़े को नियंत्रण करने की जगह अनियंत्रित कर दिया जाता है. डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, विच इज़ नॉट द वे इट नीड्स टू बी टेम्ड. तो मुझे बताना क्या समझ में आया. दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, याद रखना लड़के लड़कियों, आप लोग सब रेकमेंड होना चाहते हो. जीवन में गति से ज़्यादा दिशा इम्पॉर्टेंट है. और जब आप अपने इस घोड़े को, इस जो वाइल्ड घोड़े को टेम करके कंट्रोल कर लोगे, दिस इज हाईली डायरेक्टेड. दैट्स दिस घोड़ा नंबर 2. नंबर 1 घोड़ा इज़ वेरी वेरी डेंजरस. नंबर 2 घोड़ा इज़ हाईली इन कंट्रोल. इसके लिए एक वीडियो देखना, AFOSUP वीडियो, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. क्या नाम है उसका? डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. उस वीडियो को जरूर देखना. सो जब आपका घोड़ा कंट्रोल में होगा, जब आपका मन नियंत्रित होगा, तो आप दिशा और दशा आप तय कर सकते हो. इसलिए साइकोलॉजी में एक स्टेटमेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड स्टेबलाइजेस द सिचुएशन. परिस्थिति जैसी भी हो, अगर मनस्थिति नियंत्रित हो तो यू कैन हैंडल दैट सिचुएशन मच मच बेटर, बी इट लाइफ और बी इट SSB. आफ्टर ऑल SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. तो स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड स्टेबलाइजेस अ सिचुएशन. अगर आपका मन इस तरह से हो जाता है, दिस इज अ अनस्टेबल सिचुएशन, एंड इस कंडीशन में छोटे छोटे प्रॉब्लम भी मैग्नीफाई होकर बहुत बड़ा हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. उसी जगह में किसी भी परिस्थिति में आप अपनी मनस्थिति को नियंत्रित रख पाते हो. जैसे नंबर 2 घोड़ा, ये छोटी बच्ची बैठी है, यू कैन हैंडल द सिचुएशन मच मच मोर मैच्योरली बिकॉज परिस्थिति इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग योर मनस्थिति. तो आई डोंट नो मुझे क्या समझ में आया, जरूर बताना. सो व्हेन स्टेबिलिटी बिकम्स योर हैबिट, स्टेबिलिटी मतलब कौन सा? नॉट एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी becomes your habit, maturity and clarity follow. That's the time when you have clarity. So today in the name of coaching, आपको stability लाने की जगह unstability ले आता, बिकॉज आप छटपटाते हो रेकमेंड होने के लिए. और उस चक्कर में क्या होता है कि अपने आप को विकसित करने की, अपने व्यक्तित्व को विकास करने की जगह हम TAT WAT में उलझ कर रह जाते हैं और टिप्स एंड ट्रिक में फंस जाते हैं. यू नीड टू गार्ड अगेंस्ट दिस. तो मुझे ज़रूर बताना क्या समझ में आया स्लाइड से. एंड once you are clear on that, now आप सोच लो, जब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, भले वो TAT हो WAT हो, आपका माइंड ऐसा भी काम कर सकता है, आपका माइंड ऐसा भी. डेफिनेटली दिस माइंड कैन नॉट क्रिएट द डिजायर्ड इम्पैक्ट, बट दिस इज अनस्टेबल माइंड.
and this definitely can produce better results because परिस्थिति जैसी भी हो, मनस्थिति stable है and your responses will be much more mature. तो ये जो 15 officer like quality है, एक unstable mind cannot produce it. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि do you consider your mind is a concentrated laser focused mind or it's a distracted mind? क्या ये घोड़ा नंबर 1 की तरह चलता है या घोड़ा नंबर 2 की तरह? 1 की तरह चलता है तो SSB आपके लिए मुश्किल है, और अगर 2 की तरह है डेफिनेटली योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन बोथ इन लाइफ एंड SSB विल बी मच बेटर एंड हायर. सो दैट्स वाई SML का जो एक टैग लाइन है, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विच इज़ द पर्सनैलिटी लीडरशिप का फाउंडेशन कोर्स है, इसका टैग लाइन है, इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. अगर आप अपने अंदर के दुनिया को मैनेज कर सकते हो तो बाहर की परिस्थितियों को, बाहर की दुनिया की घटनाओं को, बीट लाइफ और SSB को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा. तो उसके लिए एक वीडियो का और रेफरेंस दे रहा हूँ, वो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप SML माइंड मैटर्स. इट्स अ 2 hours का वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखना. जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू विल ऑल्सो गेट लॉट ऑफ आइडियाज़. सो वन आई विल आस्क यू टू वॉच दिस वीडियो एंड अनदर वीडियो इज डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. इसका रेफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, जहाँ पे हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम घोड़ा नंबर 1 टू घोड़ा नंबर 2 दिया हुआ है. अगर वो समझ में नहीं आता तो यू कैन अटेंड द क्लासेस ऑफ SML, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. Now I'll show you 2 TAT एग्जाम्पल जहाँ पे आप अपने आप ही इस घोड़े की कंडीशन को समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट ने ये पिक्चर दिखाया है. यू कैन सी अ गर्ल ट्राइंग टू एंटर इनसाइड द रूम एंड अ बॉय इज वॉचिंग हर, है ना. आप मुझे ज़रूर स्टोरी लिख के भेजना कि आप इसके ऊपर क्या लिखते हो. आई विल शो यू वन स्टोरी जो मेरे क्लास में, जो एयरफोर्स के कॉम्पोजिट बैच 1 वालों ने लिखा है, वो शुरुआत में टिल दे गॉट करेक्टेड. नाउ इट सेज, इस पिक्चर के ऊपर लिखता है, ये पिक्चर जब अंदर गया तो वर्ल्ड इनसाइड में प्रोसेसिंग हुआ था, प्रोसेसिंग करके ये रिस्पॉन्स है. सोहम्स पेरेंट, तो ये लड़का है, ये सोहम्स पेरेंट्स वर नॉट अलाउिंग हिज सिस्टर, तो ये सोहम की सिस्टर है. तो सोहम्स पेरेंट्स, इस पिक्चर में नहीं दिखाया, वर नॉट अलाउिंग हिज सिस्टर टू मैरी ए पर्सन ऑफ हर चॉइस ड्यू टू कास्ट डिफरेंसेस. तो पहले लाइन में क्या दिखाया कि इस लड़की को किसी एक लड़के से she likes her and the parents of this girl refused to get her married because of caste differences. and इसका एक भाई भी है, उसका नाम है सोहम. so discreetly मतलब छुप के, his sister मतलब ये लड़की was trying to escape and marry him. तो ये घर से भाग कर इस लड़के से शादी करने जा रही थी. तो क्यों भाग रही थी? क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी उस लड़के से करने से मना कर दिया. और वो क्या कर रही थी इसके बदले में? डिस्क्रीटली, छुपके से भागने की कोशिश कर रही थी. एंड मैरी हिम, ताकि वो उस लड़के से भाग के शादी करे. व्हेन सोहम स्टॉप्ड हर, लेकिन फॉर्चुनेटली सोहम ने अपनी बहन को खिड़की से बाहर जाते हुए देख लिया एंड ही स्टॉप्ड हर. बोला डोंट रन अवे, ही वुड हैव आस्क्ड हर, स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से उसको रोक दिया. आफ्टर कामिंग हर डाउन ही कॉल्ड हर बॉयफ्रेंड टू देयर हाउस. तो सोहम की सिस्टर को काम डाउन करने के बाद जब पता किया बातचीत, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया. किस लड़के को? जिससे ये लड़की प्यार करती थी. 3 of them, कौन है 3? दैट बॉय, सोहम एंड सोहम की सिस्टर अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, और सोहम के माता पिता सैट टुगेदर फॉर डिस्कशन. उसके बाद सोहम ने उन सबको बैठा के बात किया, चर्चा किया. एज सोहम न्यू दैट बॉय वेल, सोहम इस लड़के को पहले से ही जानता था. देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, एक है, ये है मम्मी, ये मम्मी पापा है, ये सोहम की बहन है, ये सोहम है, और ये वो लड़का है जिससे इससे प्यार करना चाहती, इससे प्यार करती है, ये मैरिज करना चाहती है. इन दोनों ने मना कर दिया इस लड़के से शादी करने के लिए. बदले में ये खिड़की से भाग रही थी और सोहम ने उसे रोका, और सोहम ने बोला अरे तो मैं इसको जानता हूँ. और फिर इन्होंने इन तीनों को मिलके इनके साथ बैठ के डिस्कशन किया. दैट्स द वे द होल थिंग इज ड्राइंग. एज सोहम न्यू दैट बॉय वेल, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट हिज गुड क्वालिटीज़. सोहम ने उस लड़के के गुड क्वालिटीज़ के बारे में अपने माता पिता को बताया. एंड कन्विंस देम, और सोहम ने अपने माता पिता को इस मैरिज के लिए कन्विंस कर दिया. सो कुल मिला के दे एग्रीड. फॉर द
ट्रू लव दे हैड फॉर ईच अदर, है ना, इन दोनों का ट्रू लव के बारे में सोहम ने उन्हें कन्विंस कर दिया. इट श्योरली टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट. सोहम को ये करने में बहुत मेहनत लगा एंड टाइम भी लगा, एफर्ट्स एंड टाइम, बट फाइनली दे पेरेंट्स एग्रीड एंड कपल, ये क्या लिखा पता नहीं, थैंक्ड सोहम फॉर हिज एफर्ट्स. मतलब कपल दोनों ने क्या बोलते सोहम की सिस्टर्स ने. ना आप इसको देखोगे तो आपको देखो कि ये लड़की भी इसी कैंडिडेट ने बनाया और लड़की का मन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया. आपको समझना क्या है कि सोहम की सिस्टर, जैसे ही माता पिता ने बोला कि तेरी शादी उस लड़के से नहीं होगी, सोहम की सिस्टर का माइंड हो गया आउट ऑफ कंट्रोल. और ये एक्शन जो है आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन का है. और बाद में सोहम ने इंटरवन किया करके इसके घोड़े को शांत किया, मन के घोड़े को शांत किया. और सबसे मजे बात है कि सोहम को भी पता है उसकी सिस्टर का एक चक्कर चल रहा है, भाई आफ्टर ऑल पेरेंट्स के बाद में ये सब चल रहा होगा डिस्कशन. तो उस टाइम सोहन ने नहीं किया, सोहन ने उस टाइम इंटरवीन किया जब ये लड़की भाग रही थी. अगर सोहम नहीं देख पाता, अगर मान लो जब ये भाग रही थी सोहम बाथरूम में होता या सो रहा होता, देख नहीं पाता, तो ये लड़की भाग जाती. इसका मतलब ये सारा एक्शन सोहम नहीं कर पाता अगर लड़की सक्सेसफुली भाग जाती. तो सवाल ये आता है कि पहले तो ये लड़की भागी क्यों नहीं? क्योंकि जब SRT में पूछा जाता है, अभी इसी टाइप का एक लड़कियों के लिए SRT है. फॉर एग्जाम्पल योर फादर, योर मतलब suppose a girl है, your father wants you to get married to a friend's son, let's say son, whereas you like someone else, so you will. यहाँ पे आप क्या लिखते हो लड़कियों और लड़के, पता क्या लिखते हो? I'll go and talk to my father and convince him for this marriage. Whereas in this story, this girl, when she was refused to marry that boy by the parents, she decided to run away. And then Soham intervened subsequently because he saw her running away. Otherwise उसने उससे पहले, जबकि वो बोलता है कि he knew that boy and his good quality, तो पहले क्यों नहीं बोला? भागने की नौबत ही क्यों आई? सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की भी डेफिशिएंसी है. एंड व्हाट यू राइट इन SRT and what you are doing in TAT, there is a mismatch as far as the character female is concerned. तो मुझे बताना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ. So there is a गड़बड़, there is a incongruence in the claims that you make through the SRT and in the SD. आप SD में अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, and in reality TAT में, TAT का weightage is 70% because after all it is accessing a subconscious dimension. So this girl could not take the rejection or the no from a parents and decide to discreetly run away. वो तो किस्मत अच्छी थी कि पकड़ ही गई, तो सोहम इंटरवीन कर दिया. और सोहम ने पहले क्यों नहीं इंटरवीन किया? बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है ये. तो आप मुझे बताना क्या समझ में आया. तो जो OLQ हम देख रहे थे और इस लड़की ने जो दिखाया और सब्सिक्वेंटली इस लड़के ने जो दिखाया, वो दोनों में गड़बड़ा. लड़का का सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डिसीजन वाज ऑल लेट जब वो लड़की भाग रही थी. ऐसा क्यों हुआ? और लड़की जो SRT में ऐसा लिखती है कि मैं अपने पापा से बात करूँ, वाई डिसाइड टू, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक लड़की खिड़की से आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, सो आपने ये कॉज बना दिया कि वो लड़की को मना कर दिया, भाग रही है. सो मुझे बताना क्या समझ में आया. सो आपका SD में आप कभी नहीं लिखोगे व्हाट योर पेरेंट थिंक्स अबाउट यू. आपने कभी नहीं लिखा कि माई पेरेंट थिंक दैट आई एम एग्रेसिव एंड इफ दे डोंट एग्री ऑन थिंग आई गो वायलेंट, आई एम इमोशनली अनकंट्रोल्ड and I am extremely aggressive and I don't care for family values. ऐसा कभी नहीं लिखा होगा. आपने ये लिखा होगा I am a trustworthy person, I am responsible, I am sincere, I am obedient. But एक obedient लड़की ऐसा तो नहीं करेगी अगर माँ बाप ने किया. So there is a mismatch between what you are trying to present through the self description and what you are doing in your TAT. मुझे जरूर बताना क्या समझ में आया. And उसी तरह से एक और स्टोरी दिखाऊंगा. Now look at this picture. इस पिक्चर में there is a कैबिन जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है. इसका मतलब इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है, बाहर ये लेडी बैठी है, तो प्रॉब्ली शी मस्ट बी दी पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर. एंड देयर इज अ यंग मैन वेल ड्रेस्ड एंड वेरी डिसेंटली टॉकिंग एंड द गर्ल लेडी इज टॉकिंग टू हिम, है ना. सम कम्युनिकेशन इज हैपनिंग. सो डेफिनेटली ही विल नॉट बी द MD, बिकॉज MD होता तो शायद शी वुड हैव गॉट अप, है ना, प्रोटोकॉल के मुताबिक, बिकॉज ही इज द MD. तो हो सकता है ये बंदा MD से मिलने आया, वॉट एवर दैट यू हैव टू डिसाइड. नाउ व्हेन दिस पिक्चर वेंट इनसाइड, लेट्स सी हाउ अ CDS बॉय राइट स्टोरी अबाउट इट, है ना. इसमें कोई एग्रेशन, वायलेंस कुछ नहीं दिख रहा. देयर इज अ पर्सन, जेंटलमैन, वेल ड्रेस्ड, ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है, decently standing in front of the lady's table. The lady is explaining something. This is what the picture is. Let's see क्या लिखता है.
नाउ आरती वॉज ए रिसेप्शनिस्ट. तो आरती कौन है? रिसेप्शनिस्ट है एट आर्या कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक, एक बैंक में, आर्या कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक में. लेटली द मैनेजिंग डायरेक्टर of the bank had been inappropriately approaching her. तो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब इस लड़की का जो एमडी है, ये एमडी इस लेडी को इनअप्रोप्रिएटली अप्रोच कर रहा था, टचिंग हर एंड यूज टू पास ऑब्सक्योर रिमार्क्स. मतलब इसको गलत तरीके से टच करता था और गंदे रिमार्क्स बोलता था. When she was alone, जब भी वो अकेली होती तो ये सब काम एमडी साहब करता था. कौन एमडी है? एक बैंक का, आर्यन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मैनेजर. When she was alone, कब करता था? जब वो alone. This caused lot of mental agony to her, which made her feel disturbed. इस मैनेजर के इस बिहेवियर ने इस लेडी को बहुत ज़्यादा मेंटली हैरास कर दिया और बहुत डिस्टर्ब रहने लगी. पिक्चर देखो क्या हो रहा है, स्टोरी में देखो क्या हो रहा है. बट शी वॉज फर्म इनफ टू स्टॉप दिस द नेक्स्ट डे. बट वो लेडी बड़ा क्लियर थी कि इस नॉनसेंस को वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी. व्हेन द एमडी अप्रोच्ड हर, शी बोल्डली कन्फ्रंटेड हिम and also showed his actions were being recorded in the CCTV camera. तो अगले दिन जब MD आके अपनी गंदी हरकतें किया तो इस सेक्रेटरी ने बहुत सख्ती के साथ उसे ऑब्जेक्ट किया और उसे बताया कि देखो तुम्हारी सारी हरकतें CCTV कैमरा में कैद हो रही है. She brought this event to the attention of the anti-sexual harassment committee. तो उसने इस घटना को, जो एमडी का जो गंदी बिहेवियर है, इसको सीसीटीवी के फुटेज के साथ में एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को प्रेजेंट किया अपने केस को. एंड द एमडी वाज रिमूव्ड बाय वोटिंग ड्यू टू हिज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. और एमडी को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. She ensured every women staff was safe from such inappropriate behavior. And then she ensured कि अपने आर्यन कोऑपरेटिव बैंक का हर लेडी was protected from such sexual harassment. So that's fine कि उसको जॉब से निकाल दिया. But look at the picture and look at the way the candidate created. Definitely candidate के मन में लस्ट का घोड़ा दौड़ पड़ा. अब ये क्यों ये आया, आपको ये समझना होगा कि इस पिक्चर में कहीं पे भी देर इज नो ट्रेस ऑफ लास्ट, बट कैंडिडेट ब्रॉट इन. सो देर इज एन एक्सटर्नल इनपुट, दैट्स दिस पिक्चर, एंड देर इज एन इंटरनल इनपुट जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, विच इज काम, क्रोध, लोभ, मोह. तो यहाँ पे काम भावना से ये क्यों आया ये आपको समझना पड़ेगा. सो दिस स्टोरी इज अ स्टोरी where MD was removed from service because of sexual harassment, whereas the picture is showing that there's a completely शांत तरीके से there's a lady explaining something. तो ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि आपका सबकॉन्शियस के कुएं में कचरा था, एंड वो कचरा छोटा मोटा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कचरा था. तो हमें इसे साफ किए बिना SSB में TAT ठीक करोगे तो ये नहीं होगा. मुझे बताना क्या समझ में आया. इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है जहाँ पे कुएं के कचरे की बात मैंने किया हुआ है. दिस हैज़ टू बी क्लीन्ड. दिस इज़ द फाउंडेशन दैट वी हैव टू वर्क ऑन. सो यहाँ पे वैल्यू डेविएशन आया कैंडिडेट का कि एक इंटरेक्शन बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल हैज़ टू हैव लस्ट एज द कोर थीम. दैट्स व्हाट इज़ कमिंग. सो इस कचरे को निकालना है. तो एक सवाल है कि आप कैसे सोचते हो, आपका मन रूपी घोड़ा कैसे नियंत्रित है या आउट ऑफ कंट्रोल है. बिकॉज अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम घोड़ा नंबर 1 टू घोड़ा नंबर 2, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू लर्न हाउ टू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर ओन थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर. क्योंकि जैसा विचार वैसा व्यवहार. आप अपने विचारों को जब तक शुद्धता नहीं लाओगे, आपके व्यवहार में शुद्धता नहीं आएगी. आप TAT प्रैक्टिस करते रह जाओगे, बट विल नॉट चेंज बिकॉज फंडामेंटली आपका सोच में कचरा है. सो
आप मिलिट्री लीडरशिप में जा रहे हो मोस्ट ऑफ यू. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली, कॉम्पिटेंटली एंड एंथुसियास्टिकली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्टिव. आप कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर करोगे अगर आपका मन रूपी घोड़ा खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल है. यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स माइंड इफ योर ओन माइंड इज आउट ऑफ कंट्रोल. तो मुझे ज़रूर बताना क्या समझ में आया. सो बिफोर यू start leading others, self management leadership talks about leading yourself. That is to become a better leader through better self understanding and practical application of self management rules and principles. इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, Mind Matters, SML Mind Matters. तो मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आपका घोड़ा कैसे चल रहा है, कंट्रोल या अनकंट्रोल? क्या आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आता है? क्या आप डिस्ट्रैक्शन हो? क्या आपका माइंड भटकता है, भागता है, शॉर्टकट ढूंढता है? सही गलत का भेद कर पाते हो या आप किसी मीठे मीठे बोल में फंस जाते हो? तो ज़रूर बताना व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर मानसा. जब आपको ये TAT WAT कराया जाएगा, अंदर से क्या निकलेगा? अगर आपको ये समझना है तो आप एक वीडियो और भी है, उसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. AFSO को वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, उसे ज़रूर देखना. और वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस का डेफिनेशन लिखा है कि सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग अ क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग अ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थॉट्स, बिलीफ सिस्टम, value system, needs, motive, motivation and emotion. Self-awareness allows you to understand yourself and other people, and this also helps you to understand how you're going to likely to respond in various situations in that particular moment. तो इसे ज़रूर ठीक करना. आपके SSB की तैयारी सेल्फ को ठीक करने से शुरू होनी चाहिए, ना कि TAT WAT SRT. TAT WAT SRT ओनली दी टेस्टिंग टूल्स. तो जो लोग इसे करना चाहते हो, हर मंडे से आपको 2 वीक्स का SML क्लासेस, 2 वीक का AFSOP क्लासेस एंड 4 वीक्स का कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगा. नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 9th अगस्त से है. ये 2 वीक का है. 9th अगस्त से 21 अगस्त का, 16th अगस्त, 23rd अगस्त, 30th अगस्त एंड 6 September 2021. So I'll suggest you to go through this module. This will clearly help you to understand your own self better. And जब आपका मन रूपी घोड़ा मानसा ठीक हो जाएगा तो गंगोत्री ठीक हो जाएगी, और गंगोत्री ठीक हो गया तो उससे बहने वाली गंगा भी ठीक हो जाएगी. There are various combination available. We will recommend you go for 2 weeks of SML plus 2 weeks of SSB. That's 4-week module. This can be clubbed as 2 weeks plus 2 weeks साथ में भी, but that will be option 2 जो है. But we will suggest you to go for 4 weeks of composite batch, that is SML ख़त्म होने के बाद SSB, and वो भी ख़त्म होने के बाद again you can remain with me for another 4 weeks. That is total 2 months you will be with me if you go for option 1, and 6 weeks if you go for option 2, and various other combinations के बारे में you can contact me at 8275577650. अपने साथियों के साथ शेयर करना. एंड 500% क्लैरिटी. AFSOP does not guarantee you success through SSB because that's not possible. बहुत सारे लोग करते हैं. I will not do it because वो मार्केटिंग है. AFSOP guarantee you clarity. क्लैरिटी के ऊपर खेल है पूरा. 500% clarity, not 100. 500% clarity. So contact me at 8275577650, and the next batch is starting from tomorrow, and thereafter from 16th August and 23rd August. Those things detail you can take it from me once you do the WhatsApp at 8275577650. Thank you and may God bless you. जरूर फीडबैक बताना क्या समझ में आया. दोबारा लास्ट में एक स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ, गति से ज़्यादा दिशा इम्पॉर्टेंट है. मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करो. Many things will come under control. Thank you and may God bless you. Thank you very much.